Today we were going to see over a four part series on why to become a concrete specialist. So today it is only about why, but afterwards we will take what do we mean by a concrete specialist, and then we will take how to become a concrete specialist. So yes, there is still certain time. Uh, so every Wednesday we will schedule it, and today we are going to talk about the why part of it. Why should one become a concrete specialist? A few years ago, when a concrete mix was simply a mix of sand, cement, and water, right? It was simply a mixture of these three things. But over the last 20 years, the concrete technology changed rapidly. Now we have wonderful materials like GGBFS and fly ash. We have super plasticizers out there, and of course our own crushed sand is playing its own havoc because river sand is not available. So concrete has not remained as simple when we talk about the ingredient part. On the other hand, on the performance part as well, the concrete has not remained so simple. We want to design self-compacting concrete. Imagine a few years ago, let's say year 2000, you would have told anyone that no vibration required. People would have laughed at it. Vibration not required for concrete? Yes, but now we have self-compacting concrete. Imagine you are कंसीविंग अ कंक्रीट, एक ऐसी कंक्रीट के बारे में भी हम सोच रहे हैं जिसकी लाइफ इज मोर देन 100 ईयर्स. आज से 20-30 साल पहले शायद पॉसिबल नहीं था ऐसा कंक्रीट के बारे में सोचना, बट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट, एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट एटलीस्ट 100 ईयर लाइफ ऑफ अवर कंक्रीट. तो जब एक साइड पर इंग्रेडिएंट्स में इतना चेंजेस है, ऑन द अदर हैंड we have so many changes on the concrete parameters. So with these two things on one side, एक तो क्या हुआ कि पहले का कंक्रीट बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. आज का कंक्रीट कॉम्प्लेक्स है. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, एक कंक्रीट स्पेशलिस्ट के लिए जब एक पर्सनल हम बात करते हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड है, so suddenly the opportunities in the field have exploded. uh, I know that lakhs of civil engineers today struggle to do something worthwhile in their career. Just they remain stuck in a role of a site engineer all their life. And I thought, why not coach these civil engineers and help them to develop an expertise to become a concrete specialist. इससे क्या होगा? What will it achieve? Suddenly hundreds of doors from various segments of our industry will open for them, and they will get all these opportunities. और ये सारी opportunities क्या करेंगी? They will give us status, probably money, और उसके साथ में बहुत बढ़िया job satisfaction. So when you are dealing with concrete, it is a challenge every day. लेकिन उसके अलावा, उस चैलेंज के अलावा, वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है वो हाईएस्ट है. तो क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर अवर कंक्रीट स्पेशलिस्ट. पहले कंक्रीट स्पेशलिस्ट का रोल कहां पर था? जहां पर बैचिंग प्लांट है, बस वहां पर रोल रहता था एक कंक्रीट स्पेशलिस्ट का. लेकिन अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the concrete specialist role has grown into many fields, just starting from your cement supplier. पहले सीमेंट सप्लायर सीमेंट सप्लाई करके चला जाता था साइट के ऊपर, बट नाउ हाउ इट इज, नाउ सीमेंट सप्लायर हैज टू गेट इन्वॉल्व इनटू द कंक्रीट डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो एक सीमेंट सप्लायर को सिर्फ सीमेंट टेक्नोलॉजीज की जरूरत नहीं है, एक कंक्रीट स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है, हु विल गो टू द साइट्स एंड हेल्प द क्लाइंट्स जहां पर उसे सीमेंट सप्लाई करना है. जैसे सीमेंट सप्लायर की बात करते हैं, वैसे एडमिक्सचर तो हमें पता है, विदाउट ट्रायल्स यू कैन नॉट जस्ट
get the approval for your admixture brand on any site. और यहाँ पर if you are कंक्रीट स्पेशलिस्ट, आपको पता होगा किस तरीके से मैं मेरा मिक्स ट्वीक करूंगा, मैं मेरा मिक्स चेंज करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा उस कंक्रीट में। और वो ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको व्हेन यू आर इन एडमिक्सचर कंपनी, ट्रेनिंग ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी फ्रॉम एडमिक्सचर पॉइंट ऑफ व्यू। एडमिक्सचर से हम आगे बढ़ते हैं। आज इतने सारे नए नए रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, जैसे फ्लाई ऐश है, जीजीबीएफएस है। ऑल दीज कंपनीज, देयर इज अल्कोफाइन ऑन वन हैंड, अल्ट्रा फाइन जीजीबीएफएस, देयर इज अल्ट्रा फाइन फ्लाई ऐश लाइक डर्क इंडिया P100। विथ ऑल दीज रॉ मटेरियल्स कमिंग इन स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल्स, किसकी जरूरत है? यू नीड अ कंक्रीट स्पेशलिस्ट। हर प्रोडक्ट के साथ, हर साइट के ऊपर, इट इज नॉट अ नॉर्मल सेल्स जॉब, ये एक टेक्निकल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जॉब है, जो प्रोडक्ट को साइट के ऊपर प्रूव करके देना है। सो विथ ऑल दीज मटेरियल्स कमिंग इन, बहुत सारे कंक्रीट स्पेशलिस्ट की आज जरूरत है। वहां से हम आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स एवरी प्रोजेक्ट वांट्स टू हैव अ कंक्रीट स्पेशलिस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो समटाइम्स व्हेन आई से क्लाइंट्स, इट इज अ बिग डेवलपर, अ बिल्डर, जैसे हीरानंदानी है, रहेजा है, मैराथन है। सो दे हैव देयर ओन टीम, बट ऑन सम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स देयर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, और वहां पर आपको भी एक कंक्रीट स्पेशलिस्ट की जरूरत है। उससे हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग। ऑफ कोर्स एवरी कॉन्ट्रैक्टर वुड नीड इट। एंड फाइनली द रेडी मिक्स प्लांट। आज हम देख रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ रेडी मिक्स प्लांट्स आर देयर ऑल ओवर द कंट्री, एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ देम वुड नीड अ कंक्रीट स्पेशलिस्ट। लेकिन वो भूल जाते हैं, मैं आज रेडी मिक्स प्लांट में जो कंक्रीट स्पेशलिस्ट काम कर रहा है, लैब में क्यूए क्यूसी पर्सन काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपको आपकी करियर में आगे बढ़ना है, तो you should not focus only on your ready mix plant. You should target all these other opportunities which are coming in your way. क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा, just remaining a site engineer for your lifelong limits your scope. But the moment you start adding some specialization in your field, कॉलेज में हमें पता है क्या स्पेशलाइजेशन मिलता है? हार्डली वी गेट एनी स्पेशलाइजेशन फ्रॉम अवर कॉलेज। जो भी है, वंस वी कम आउट ऑन द फील्ड एंड देन वी लुक बैक एट द बुक्स, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग इज अ अप्लाइड साइंस, राइट? और इंजीनियरिंग किताबों में बहुत बोरिंग लगता है। मुझे याद है जब मैंने ऐसी कैसे वैसे मेरी सिविल इंजीनियरिंग पास की मुंबई यूनिवर्सिटी से, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फील्ड एज अ साइट इंजीनियर। बाय ग्रेस ऑफ गॉड I got opportunity to work with concrete, और फिर फोर्सफुली, जबरदस्ती वापस उन बुक्स की तरफ जाना पड़ा और किताबें खोल के पढ़ना पड़ा कि मिक्स डिजाइन क्या होता है, व्हाट इज सीमेंट केमिस्ट्री, व्हाट इज सीएसए जेल, हाउ डू एडमिक्सचर्स एक्चुअली परफॉर्म। वो कोई पानी थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं आपके कंक्रीट में, दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय विच हर सीमेंट का पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन इस सब के बारे में हम इस सीरीज में आगे आगे बात करते रहेंगे। हमारा गोल क्या है? एवरी वेडनेसडे we want to meet at 8 o'clock and discuss some parts of being a concrete specialist। और ये सारा जर्नी कब खत्म होगा हमारा? 23 दिसंबर को। जब 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एंड 25, इन 3 दिन हमारा एक बहुत बड़ी इवेंट होगी, विच इज अ फ्री इवेंट फॉर एवरीवन। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू विल बिकम। आज हम क्या बात करें कि क्यों जरूरत है, लेकिन कैसे बनना है, उसके लिए सिर्फ 30 मिनट जो हमने एलोकेट किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमें कैसे कंक्रीट स्पेशलिस्ट बनना है, हाउ डू वी अचीव इट, वो 3 दिन आप बुक करके रखिए, 23, 24 एंड 25 दिसंबर। और इन 3 दिनों में बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। At least till now, more than 200 participants have registered for this 3-day event. तो आज का कैसे? आज का कर्टन रेजर है। We are just introducing this subject कि अगर किसी को भी एक कंक्रीट स्पेशलिस्ट की दिशा में जाना है, तो वो कैसे उसका जर्नी कर सकता है। और उसकी शुरुआत आज मैं चाहता हूं कि ये जर्नी तो लाइफ लॉन्ग है। जो मेरे गुरु है प्रोफेसर एम एस शेट्टी, वो कहते हैं कि ही स्टिल देयर 91 years old। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज इस उम्र में 91 years, ही इज राइटिंग हिज सेकेंड बुक।
फर्स्ट बुक तो हम सब पढ़ते ही हैं, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बाय प्रोफेसर MS शेट्टी। कॉलेज में वो बुक पढ़ पढ़ के ही हमने वो सब्जेक्ट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पास किया था। और नाउ ही हैज शिफ्टेड टू मैंगलोर और मैंगलोर में रिटायर्ड लाइफ है, बट इज स्टिल वेरी एक्टिव। और मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारे नेक्स्ट सेशन में क्या वो लाइव आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। इट वुड बी ग्रेट। आई एम ऑलमोस्ट टच विथ हिम एवरी डे, हेल्प कर रहा हूं उनको उनकी सेकेंड बुक लिखने का एट द एज ऑफ 91 when he cannot write with his hands, right? So he has some assistant, and with that assistant he is dictating and she is writing it down, और फिर हम उसको एडिट कर रहे हैं। तो एज ही इज राइटिंग हिज सेकंड बुक, लेकिन उनकी सेकंड बुक का टाइटल है उनके बचपन से लास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, हम आगे बढ़ते गए, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में क्या चेंजेस आए ओवर लास्ट 75 ईयर्स। और आपको पता है कि हमारे इंडिपेंडेंस के अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, ये साल है 75वां साल। और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने ऐसे उसके अंडर जो टॉप पीपल है फ्रॉम एवरी फील्ड, ऐसे 75 इंडिविजुअल्स का उसमें सम्मान होने वाला है, जिसमें प्रोफेसर MS शेट्टी है फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, from our civil engineering field. So at this age he is writing a book about the journey of civil engineering in India. आई एम श्योर उनकी खुद की लाइफ के जर्नी के बारे में वो कहने वाले हैं, और उसके साथ में हमारे देश में जो सिविल इंजीनियरिंग में प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग बुक। हमारा टारगेट अगले 3-4 मंथ्स में वो बुक कंप्लीट हो। लेट्स होप इट डज दैट। लेकिन हमारा पॉइंट ये था ऑन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, दैट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो प्रोफेसर शेट्टी कहते हैं इज लाइक अ इन्वर्टेड फनल। तो इन्वर्टेड फनल ऊपर से छोटा दिखता है, राइट, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, और जैसे अंदर जाते हैं वो फनल बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। तो एनीवन हु सेज कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सिंपल, वी नो व्हाट ही, हमें पता चलता है कि कितना गहराई इसके अंदर और जाना इस पर्सन का बाकी है। बिकॉज व्हेन प्रोफेसर MS शेट्टी सेज दैट इवन एट दिस एज ही इज जस्ट अ student of concrete, and every day he still learns new things in concrete technology. तो we are always a student of concrete and never a master. लेकिन हमें ये जर्नी की शुरुआत करनी है of concrete specialist, to be a concrete specialist। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली रजिस्टर होइए। जो हमारी इवेंट है ऑन 23rd, 24th and 25th of December this month, when we are going to actually see, when we are going to begin our journey of how, किस तरीके से हम कंक्रीट टेक्नोलॉजीज बन सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि आज अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको पता है सीमेंट प्रोडक्शन कितना है हमारे देश में इस साल? It would be about 300 to 350 million tons of cement produced in this year, and the same production by 2030 is going to be twice, 650 million tons of cement is only going to be produced in India, which means आज जितना कंक्रीट है उससे डबल द कंक्रीट is going to be there over next 10 years। और इस कंक्रीट की तरफ ध्यान कौन देगा? आप और मैं, जो हम कंक्रीट स्पेशलिस्ट होंगे। हमें इस कंक्रीट का ख्याल रखना है। और आज एक बहुत बड़ा कर्स है हमारे कंट्री में, एक साइड में हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाते हैं और दूसरी जगह पर इतना खराब कंक्रीट के वाटर सीमेंट रेशो का भी ठिकाना साइट के ऊपर नहीं होता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर कंक्रीट। और ये कंक्रीट का जो दुश्मन है, कौन दुश्मन है कंक्रीट का? द बैड कंक्रीट क्वालिटी। तो इस दुश्मन को हमको हमारे देश से हटाना, इफ वी वांट टू रीच एट दैट प्लेस एंड इफ वी वांट टू कंज्यूम दैट 650 tons of million tons of cement over next 10 years। तो 650 million tons is projected figure के ईयर 2030 में हम अचीव करेंगे। और ये कौन यूज करेगा सीमेंट? हु इज गोइंग टू यूज इट? सीमेंट सप्लायर्स आर गोइंग टू सप्लाई टू प्रोजेक्ट साइट्स दिस सीमेंट 650 million tons। उसके साथ कौन रहेगा? बहुत सारा प्लास्टिसाइजर रहेगा। सो देयर इज अनदर प्रोडक्ट। इस सीमेंट के साथ रिप्लेसमेंट के लेवल पर कौन आने वाला है? GGBFS एंड फ्लाई ऐश। इमेजिन कीजिए कि उस साल तक अगर हम 50-50% लेवल हर जगह पर पहुंचते विद GGBFS रिप्लेसिंग सीमेंट, इमेजिन 650 tons of OPC along with 650 million tons of GGBFS or fly ash would be there।
तो उसके साथ भी सीमेंट स्पेशलिस्ट, कंक्रीट स्पेशलिस्ट लगने वाले हैं। इतना सारा कंक्रीट जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएगा, जहां पर ये पंप होगा, वहां पर आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगेंगे। ये कंक्रीट जो प्रोड्यूस करेगा उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे रेडीमिक्स प्लांट्स है, दे विल नीड कंक्रीट स्पेशलिस्ट। So with such a huge goal that we have for our concrete specialist, हमें ये देखना है कि आज हमने इस छोटे से सेशन में कर्टन रेजर, जस्ट पर्दा उठा रहा हूं इस सब्जेक्ट का, आज इस 30 मिनट के सेशन में हमने क्या देखा कि क्यों जरूरत है, वाई आज जो एक साइट इंजीनियर है, जो एक फ्रेश इंजीनियर आउट ऑन द फील्ड है, उसने कंक्रीट में स्पेशलाइजेशन करना क्यों जरूरी है, उस वाई की तरफ आज हमने देखा। लेकिन हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन, एक कंक्रीट स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है, क्या क्या जानता है कंक्रीट स्पेशलिस्ट। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा हमारा, जो हम नेक्स्ट वेडनेसडे को उसे टैकल करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट वेडनेसडे वी विल कम एंड वी विल लुक एट व्हाट डू वी मीन बाय कंक्रीट स्पेशलिस्ट। और उसके अगले वेडनेसडे हम क्या देखेंगे कि इस पाथ के ऊपर हाउ डू वी बिगिन वॉकिंग, राइट। तो ये 3 पार्ट की हमारी सीरीज है, 30 मिनट्स थ्रू यूट्यूब लाइव। और आई मेड लॉट ऑफ fumbles when I began today. Just as I mentioned, last moment lost the internet connection, and then I began 5 minutes late. But that is the future. तो आज जब ये सेशन हम एंड कर रहे, एक ही थॉट आपके दिमाग में रखिए, 650 मिलियन टन तक हमारा देश पहुंचने वाला है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है रिलेटेड टू कंक्रीट। 6 मिलियन टन ऑफ सीमेंट बाय ईयर 2030, आ जाए 325 मिलियन टन पे, तो अगले 10 साल में this production is going to increase so much that it is going to be double. क्या आप रेडी है ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, पर्सनली आपके खुद के ग्रोथ के लिए, सो दैट आप धीरे 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 कंक्रीट स्पेशलिस्ट बनते बनते मेरे जैसे एक ट्रेनर भी बन सकते हो, कल मेरे जैसे कंसल्टेंट भी बन सकते हो। ग्रेस ऑफ गॉड, यू नो, the opportunities which are going to come in your path are going to be huge, and the question is how you will grasp these opportunities, right friends? So we will meet again next Wednesday at 8 p.m. and we will discuss what do we mean by being a concrete स्पेशलिस्ट। एक कंक्रीट स्पेशलिस्ट होने का मतलब क्या है, क्या क्या आपको आना चाहिए, क्या क्या आपने सीखना चाहिए, कितनी चीजें हैं जो आप थ्रू वीडियोस थ्रू बुक्स कर सकते हो, कितनी चीजें जो आपको प्रैक्टिकली जाकर करनी पड़ेंगी, तभी आप एक कंप्लीट कंक्रीट स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो मेरा दावा क्या है, मेरा दावा ये है कि आप जर्नी शुरू करो। आप स्टूडेंट तो लाइफ लॉन्ग रहोगे, लेकिन आप एंजॉय करोगे आपकी लाइफ एज अ प्रोफेशनल लाइफ, डीलिंग विद दिस फैसिनेटिंग सब्जेक्ट ऑफ कंक्रीट। बिफोर आई स्टॉप, एक ही चीज आपको बताता हूं, डू यू नो विच इज द हाईएस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस ऑन द अर्थ? सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल आज अर्थ के ऊपर कंज्यूम होता है? पानी, वाटर। और वाटर के बाद नंबर 2 मटेरियल इज our concrete. The highest consumed material on earth is not plastic, not anything else, it is our concrete. और ये concrete हमारे देश में अगले 10 साल में डबल होने वाला है, right? So you can imagine the scope which is available, and I am there to guide you on this path. We will have these lovely webinars, emails, LinkedIn posts, Facebook posts, so do subscribe to the emails which are coming to you through the links which are there under the post, and I will stay in touch with you. Let's meet again on next Wednesday 8 p.m. at YouTube live. Thank you very much.